رات کے خاموش پہر میں جب ایک خوبصورت اور تنہا لڑکی ریشمی گاؤن پہنے لرزتی پلکوں اور تپتے ہوئے جسم کے ساتھ ایک پرائے مرد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو خاموشی بھی سانسیں روک لیتی ہے۔ کاشف کے لیے وہ صرف اس کے دوست کی امانت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا سلگتا ہوا گلاب تھی جس کی خوشبو اسے گناہ اور محبت کی باریک لکیر پر لا کھڑا کرتی تھی۔ لیکن جب ایک ہی بیڈ روم کی دوری پر دھڑکتے دو دل جذبات کی حدیں توڑنے کے قریب ہوتی ہیں تو قسمت ان کے سامنے ایک ایسا بھیانک اور رنگین راز کھول دیتی ہے جو ان کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے کہ کاشف اس معصوم حسینہ کو اپنے سینے سے لگا پائے گا یا دانیال کا ایک بند کمرے میں چھپا وہ گناہ سب کچھ خاک میں ملا دے گا۔ آؤ سنتے ہیں دھڑکنیں تیز کر دینے والی محبت، ہوس اور جذبات سے بھری یہ آتشیں داستان۔ کاشف نے کھانے کی پلیٹ ایک طرف کھسکائی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے صوفے پر ڈھہ گیا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور دل کے اندر جذباتی طوفان برپا تھا۔ ایک طرف اس کا بچپن کا دوست دانیال تھا جو زویا جیسی معصوم اور حیا دار لڑکی کا شوہر ہونے کے باوجود کراچی کے بزنس ٹور کا جھوٹ بول کر اسی شہر کے ایک پرتعش ہوٹل کے بند کمرے میں فریدہ نامی ایک عورت کے ساتھ عیاشی کر رہا تھا، اور دوسری طرف کاشف خود تھا جو زویا کی ایک ایک مسکراہٹ، اس کے نکھرے ہوئے گلابی رخساروں اور اس کی بے بس آنکھوں پر اپنا دل مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ کاشف نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے ماتھے کی رگوں کو دبایا اور خود سے تلخ لہجے میں بولا، اگر میں خاموش رہتا ہوں تو دانیال زویا کی زندگی جہنم بنا دے گا، اسے سڑک پر لا کھڑا کرے گا، اور اگر میں زویا کو سچ بتا دیتا ہوں تو ایک ہنستا بستا گھر ایک پل میں تباہ ہو جائے گا۔ لیکن جو رشتہ قائم ہی فریب، عیاشی اور جھوٹ پر ہو، اسے قائم رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زویا کو اس اندھیرے سے نکالنا ہی ہوگا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ کاشف نے بستر سے اٹھ کر اپنا جپسی جیکٹ پہنا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈرائنگ روم کی مدھم روشنی میں زویا صوفے پر بیٹھی ایک پرانی کتاب کے صفحات پلٹ رہی تھی۔ کاشف کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے گردن موڑی۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی سادگی تھی اور ہونٹوں پر ایک نرم معصوم سی مسکراہٹ ابھری۔ کاشف صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زویا نے دھیمی اور شین آواز میں پوچھا۔ کاشف نے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا اور اپنی نظریں زویا کے شاداب چہرے سے ہٹا کر بولا، ہاں زویا، دانیال کے ایک کام کے سلسلے میں جانا پڑ رہا ہے۔ اس نے شام کو ملنے کا کہا تھا۔ تم پریشان مت ہونا، میں جلد ہی واپس لوٹ آؤں گا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا اور کتاب گود میں رکھتے ہوئے بولی، کاشف صاحب، اگر ان سے بات ہو تو ان سے کہیے گا کہ میرا فون نہیں اٹھا رہے، وہ اپنا خیال رکھیں، اور ہاں، آپ بھی جلدی آ جائیے گا، رات کو اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ زویا کے ان سادگی سے بھرپور الفاظ نے کاشف کے دل پر نشتر کا کام کیا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اے معصوم لڑکی، تم جس شخص کے لیے فکر مند ہو وہ اس وقت کسی اور کی باہوں میں تمہیں طلاق دینے کے منصوبے بنا رہا ہے، لیکن میں کاشف تمہیں کبھی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ کاشف نے اپنی گاڑی شہر کے نامور اور پرتعش 3 اسٹار ہوٹل کے باہر روکی۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس بار اس کا انداز اتنا سخت اور سنجیدہ تھا کہ ہوٹل کا کلرک بھی اسے روکنے کی ہمت نہ کر سکا اور خاموشی سے راستہ دے دیا۔ کاشف لفٹ کے ذریعے دوسرے فلور پر پہنچا اور راہداری کے آخر میں موجود کمرہ نمبر 245 کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے چند لمحے گہرا سانس لیا اور پھر اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ چند سیکنڈز بعد اندر سے قدموں کی آواز آئی اور دروازہ ہولے سے کھلا۔ دانیال نائٹ سوٹ پہنے، بالوں کو بکھرائے اور آنکھوں میں خمار لیے باہر جھانکا۔ کاشف کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ڈٹائی بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے کاشف، تم تو بہت جلدی آ گئی یار، اندر آؤ، اندر آ کر بیٹھو، دانیال نے دروازہ پورا کھولتے ہوئے کہا۔ کاشف جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا، کمرے کی حالت دیکھ کر اس کا خون کھول بیٹھا۔
बेड के गिर्द कपड़े बिखरे पड़े थे। शीशे की मेज पर अधखुली शराब की बोतलें और सिगरेट के टूटे हुए बिखरे हुए थे, और बाथरूम की तरफ से शावर के गिरते हुए पानी की आवाज़ आ रही थी। काशिफ ने गुस्से को जब्त करते हुए सोफे पर बैठकर तंज़ लहजे में कहा, तो दानियाल साहब, आपका कराची का बिजनेस टूर तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। जोया वहाँ घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और तुम यहाँ होटल में ऐश कर रहे हो। दानियाल ने बेहसी से कहका लगाया और शराब का गिलास भरते हुए बोला, यार काशिफ, तुम अभी तक पुराने दौर के इंसान हो। ज़िंदगी जीने का नाम है। जोया एक इंतहाई बोरिंग, रवायती और बैकवर्ड लड़की है। इसके साथ घंटा ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। मैं बहुत जल्द इसे तलाक का नोटिस भेजने वाला हूँ। मैंने अपनी ख्वाबों की मलका फरीदा को ढूंढ लिया है। मैं अब इसके साथ रहूँगा। काशिफ ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और धीमे मगर जहर लहजे में पूछा, फरीदा, क्या तुम वाकई इस औरत से मोहब्बत करते हो? क्या तुम इसके पस मंज़र के बारे में कुछ जानते भी हो या सिर्फ इसके जिस्म के जादू में अंधे हो चुके हो? मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ काशिफ। वो बहुत मॉडर्न, खूबसूरत और हर फन मौला है, बिल्कुल मेरी पसंद जैसी। दानियाल ने फ़ख्र से अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। इसी लम्हे बाथरूम का दरवाज़ा खुला और तौलिया लपेटे गिले भीगे बालों के साथ फरीदा नंगे पाँव बाहर निकली। दानियाल, डार्लिंग, कौन आया है? इसके जुमले अभी ज़ुबान पर ही थे कि इसकी निगाहें सोफे पर बैठे काशिफ पर पड़ी। एक ही सेकंड में फरीदा के चेहरे की तमाम सुर्खी उड़ गई और इसका चेहरा जर्द हल्दी की तरह पीला पड़ गया। इसके कदम वहीं जम गए। दानियाल ने मुस्कुराकर फरीदा का हाथ पकड़ा और कहा, फरीदा जान, डरो मत, ये मेरा सबसे जिगरी दोस्त काशिफ है। काशिफ सोफे से उठा, अपने दोनों हाथ जेब में डाले और फरीदा के करीब जाकर इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, हम पहले भी मिल चुके हैं। क्यों मिस फरीदा असलम रहमानी साहिबा? यह नाम सुनते ही दानियाल का कहका फजा में माल्लक हो रह गया। इसके हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। क्या काशिफ, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? असलम रहमानी कौन है? दानियाल ने घबरा कर पूछा। काशिफ ने सुकून से अपने मोबाइल का लॉक खोला और वो वीडियोज़ और तस्वीर दानियाल के सामने लहराई जो इसने कुछ दिन पहले मारूफ प्रॉपर्टी डीलर असलम रहमानी के बंगले के बाहर से ली थीं, और वो तस्वीरें भी दिखाईं जो इसने सहेल नामी शख्स के साथ रावी रोड पर फरीदा की उतारी थी। ये देखो दानियाल, ये है तुम्हारी ख्वाबों की मलका। ये पाकिस्तान के नामवर प्रॉपर्टी डीलर असलम रहमानी की कानूनी ब्याहता बीवी है। और सिर्फ यही नहीं, परसों रात मैंने इसे सहेल नामी लड़के के साथ इसकी गाड़ी में भी देखा था। ये औरत एक वक्त में 3-3 मर्दों को अपने बिस्तर का तमाशा बनाकर इनकी दौलत लूट रही है। काशिफ की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। दानियाल का रंग सफ़ेद पड़ गया। इसने झपट कर काशिफ के हाथ से फ़ोन छीना और तस्वीरों को जूम करके देखा। फरीदा कांपने लगी और बेड की नोक पकड़कर खड़ी हो गई। फरीदा, क्या ये सच है? क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? दानियाल ने धाड़ते हुए फरीदा के शानी पकड़कर झंझोड़ दिया। फरीदा ने रोते हुए मकाराना अंदाज में बात संभालने की कोशिश की। दानियाल, यकीन करो, ये झूठ बोल रहा है। असलम से मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई थी। मैं इससे तलाक ले रही हूँ और सहेल तो सिर्फ मेरा कज़न है। बंद करो अपना ये गंदा ड्रामा। काशिफ ने ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारा। दानियाल, अगर तुम्हें अब भी अपने दोस्त पर यकीन नहीं आ रहा तो मेरे साथ चलो। अभी असलम रहमानी के बंगले पर जाकर इस औरत का पूरा कट्ठा चिट्ठा खोल देते हैं। फरीदा घबरा कर बेड पर गिर पड़ी। इसकी चालाकी और मकारी का नकाब तार तार हो चुका था। दानियाल को यूं लगा जैसे किसी ने इसके सर पर 100 किलो का लोहा मार दिया हो। वो जिस जोया जैसी हीरा सिफ्त और पाक दामन बीवी को ठुकरा रहा था, इसके बदले जिस औरत के लिए पागल था, वो कितनी गंदी और बिके हुए किरदार की मालिक थी। दानियाल ने नफरत से फरीदा को देखा और काशिफ की तरफ मुड़ा। काशिफ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी आंखों पर हवस की पट्टी बन गई थी। दानियाल और काशिफ होटल से बाहर निकले। दानियाल शदीद पछतावे, शर्मिंदगी और जिल्लत की आग में जल रहा था। वो बार बार अपने बाल नोच रहा था। काशिफ ने गाड़ी स्टार्ट की और दानियाल की तरफ देखकर संजीदगी से कहा, दानियाल, पछतावे का वक्त बाद में आएगा। इस वक्त असलम रहमानी ने मेरे वालिद की रावी रोड वाली 1.5 करोड़ की जायदाद पर नापाक कब्जा कर रखा है और कागजात दबाए बैठा है। तो मेरे साथ ही इसके घर चलो और वहाँ जो कुछ हमने देखा है इसके ज़रिए इसे बेनकाब करके मेरे पापा की जायदाद के कागजात वापस ले लेंगे। दानियाल, जो फरीदा और इसके शोहर के फरेब से वैसे ही तेश में था, फ़ौरन तैयार हो गया। वो दोनों चंद ही लम्हों में
असलम रहमानी के पुरताश बंगले पहुंचे। रहमानी ड्राइंग रूम में सोफे पर बरजमान सगार के कश ले रहा था जब काशिफ और दानियाल बगैर किसी इजाज़त के अंदर दाखिल हुए। अरे काशिफ साहब, आप फिर आ गए। मैंने सुबह भी कहा था कि मैं वो रावी रोड वाला प्लाट नहीं बेचूंगा, रहमानी ने अपने रवायती मगरूराना अंदाज में कहा। काशिफ ने एक ज़हर आलूद और फातहाना मुस्कुराहट के साथ कहा, रहमानी साहब, हम प्लाट की बात करने नहीं आए, हम आपकी नई नवेली बेगम फरीदा साहिबा के कारनामों का हिसाब देने आए हैं। असलम रहमानी चौंका। क्या मतलब? अपनी ज़बान को लगाम दो। दानियाल आगे बढ़ा और इसने होटल के बिल्स और फरीदा की दानियाल और सहेल के साथ ली गई गैर इखलाकी तस्वीरों को बंडल रहमानी की गोद में फेंक दिया। ये देखिए रहमानी साहब, आपकी नई नवेली दुल्हन होटल नंबर 245 में मेरे साथ ठहरी हुई थी और इससे पहले वह सहेल के साथ आपके अपने पैसों पर अय्याशी कर रही थी। आप जिस औरत के नाज उठा रहे हैं वो आपकी गैरत का जनाजा नकार रही है, दानियाल ने नफरत से कहा। असलम रहमानी की आंखें बाहर निकल आईं। इसका सिगार हाथ से छूटकर महंगे ईरानी कालीन पर गिर गया। इसकी उम्र के इस हिस्से में इसकी इज्जत का जनाजा निकल चुका था। काशिफ ने ठंडे और तहमकाना लहजे में कहा, रहमानी साहब, अगर इस खबर आपके कारोबारी हलकों और मीडिया में फैल गई कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी किस कमाश की औरत है तो आप बाजार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर आप अपनी रही सही इज्जत बचाना चाहते हैं तो खामोशी से मेरे वालिद के प्लाट के तमाम असली और कानूनी डॉक्यूमेंट्स और एनओसी अभी के अभी मेरे हवाले कर दें। रहमानी की टांगें कांपने लगीं। इसकी तमाम यारी और गरूर खाक में मिल चुका था। इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए फौरन वाल सेफ से तमाम डॉक्यूमेंट्स निकाले और कांपते हाथों से काशिफ के हवाले कर दिए। काशिफ ने डॉक्यूमेंट्स फाइल में रखे और रहमानी को एक हकारत अमेज निकाह से देख कर बाहर निकल आया। इसका एक बड़ा मामला हल हो चुका था, लेकिन अब इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोहरका बाकी था, जोया की ज़िंदगी और इसका फैसला। रात के 9 बज रहे थे जब काशिफ और दानियाल घर वापस पहुंचे। पूरा घर खामोश था। जोया ड्राइंग रूम में इनका इंतज़ार कर रही थी। जब इसने काशिफ और दानियाल को एक साथ अंदर आते देखा तो इसके मुरझाए हुए चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो फौरन दुपट्टा संभालती हुई आगे बढ़ी। दानियाल, आप आ गए? आप तो कह रहे थे कि 2 दिन बाद आएंगे, जोया ने मोहब्बत और लरजती हुई आवाज़ में कहा। दानियाल जोया के सामने अपनी नज़रें न उठा सका। इसके ज़मीर से कोड़े मार रही थी। वो मासूम लड़की जिसने कभी इसे किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की थी, जो हर लम्हा इसके लिए दुआगो रहती थी, वो इसे एक बाजारी औरत के लिए ठुकराने चला था। काशिफ ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, जोया, दानियाल 2 दिन बाद नहीं आया, बल्कि ये पिछले 4 दिनों से इसी शहर के एक होटल में अपनी महबूबा के साथ अय्याशी कर रहा था। जोया पर जैसे आसमान गिर पड़ा। इसके हाथ में मौजूद पानी का गिलास फर्श पर गिर कर चिकनाचूर हो गया। क्या काशिफ साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मजाक अच्छा नहीं है। काशिफ ने बिना किसी लफाजी के दानियाल की तमाम सच्चाई, इसकी फरीदा के सामने होटल की तस्वीर और इसका जोया को तलाक देने का पूरा प्लान जोया के सामने रख दिया। जोया ने बारी बारी इन तस्वीरों को देखा और फिर दानियाल के शर्मिंदा चेहरे को। इसकी आंखों से आंसू का सैलाब रवां हो गया। इसका पूरा वजूद कांपने लगा। दानियाल, क्या यह सच है? क्या मैं इतनी बुरी थी कि आपने मुझे इस हद तक धोखा दिया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? जोया की आवाज़ में ऐसा दर्द था कि काशिफ का दिल कट कर रह गया। दानियाल जोया के कदमों में गिर पड़ा और इसके पैर पकड़ लिया। जोया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था। वो औरत चालाक थी, मुझे एक मौका दे दो, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जोया का दिल अब टूट कर रेजा रेजा हो चुका था। एक सच्ची और खुददार औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने शौहर की बेवफाई और अपने वजूद की तजलील कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जोया ने अपने आंसू पोंछे और दानियाल का हाथ अपने पैरों से झटक दिया। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी सख्ती और हकारत थी। बस दानियाल, बहुत हो गया। जिस रिश्ते में इज्जत, वफा और सच्चाई ना हो वो रिश्ता रिश्ता नहीं, एक सड़ता हुआ बोझ होता है। मुझे तुम्हारी कोई माफ़ी नहीं चाहिए। तुम मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो। जोया का लहजा पत्थर की तरह सख्त था। दानियाल ने फिर मिन्नतें की, लेकिन काशिफ ने दानियाल को गर्दन से पकड़कर खड़ा किया और सख्त लहजे में कहा, दानियाल, इस पाक दामन लड़की की ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद मत करो। तुम इसके एक कायल नहीं हो, इसे आज़ादी दो।
दानियाल जानता था कि वो अब मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है और इसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। इसने रोते हुए कांपते हाथों से तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए और अपना सामान उठाकर हमेशा के लिए इस घर और इनकी ज़िंदगी से निकल गया। दानियाल के जाने के बाद घर में एक गहरा और खौफनाक सन्नाटा छा गया। जोया सोफे पर बैठकर अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर ज़ारो कतार रो रही थी। इसके पास अब ना कोई सहारा था और ना कोई सिमत। काशिफ आहिस्ता से कदम उठाता हुआ इसके करीब आया और कालीन पर जोया के बिल्कुल सामने घुटनों के बल बैठ गया। जोया, काशिफ ने इंतहाई नरम और गमख्वाराना लहजे में पुकारा। जोया ने रोते हुए अपना चेहरा उठाया। काशिफ साहब, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँगी? दुनिया मुझे मुतलका कहेगी। मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूँगी? काशिफ ने जोया के नाजुक, यख ठंडे और कांपते हाथों को अपने दोनों गर्म हाथों में थाम लिया। जोया ने काशिफ के लम्स की सच्चाई को अपने अंदर उतरते हुए महसूस किया। काशिफ ने इसकी आंखों में झांकते हुए इंतहाई खुलूस और जज्बाती लहजे में कहा, जोया, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई, बल्कि एक नापाक और झूठे रिश्ते से आज़ाद हुई है। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें पहले दिन से कितनी इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखता हूँ। शुरू में यह सिर्फ एक हमदर्दी थी, लेकिन अब तुम मेरी रूह की ज़रूरत बन चुकी हो। मैं तुमसे सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत करता हूँ जोया। मैं तुम्हारे नाम के साथ कोई दाग नहीं लगने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी इज्जत, अपनी बीवी और अपने घर की मलका बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ का एक मौका दोगी? जोया काशिफ की आंखों में देखती रह गई। वहाँ कोई हवस नहीं थी, कोई मकर नहीं था, सिर्फ एक बावफा मर्द की मोहब्बत, एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ का समुंदर था। जोया को याद आया कि कैसे काशिफ ने हर मुश्किल मोड़ पर इसकी ढाल बनकर हिफाजत की थी, कैसे इसके डर को दूर किया था और कैसे इसे एक भयानक दलदल से निकाला था। जोया के शदाब रखसारों पर हया और शर्म की सुर्खी फैल गई। इसने अपने लरजते हुए होंठों को दांतों तले दबाया और शर्मा कर नजरें झुकाते हुए खामोशी से इस बात में सर हिला दिया। चंद माह बाद दोनों के घर वालों की मुकम्मल रजामंदी और खुशी के साथ काशिफ और जोया का निकाह नहायत बावकार तरीके से अंजाम पाया। रावी रोड वाले प्लाट का मामला हल हो चुका था और काशिफ के वालिद अपने बेटे की इस कामयाबी पर बेहद खुश थे। उन्होंने जोया की मासूमियत और पाकीज़ा किरदार को देखकर इसे खुशी खुशी अपने घर की बहू बना लिया था। निकाह की तकरीब ख़त्म होने के बाद काशिफ का पूरा घर एक अजीब से मअतर और पुरसकून सुकूत में डूबा हुआ था। सुहाग रात के इस खास और यादगार पहर काशिफ के मास्टर बेडरूम की मोतिया रात की रानी और सुर्ख गुलाब के ताज़ा फलों से सजाया गया था, जिनकी मुहीब और मदहोश कुन खुशबू फ़ज़ा में बिखरी हुई थी। कमरे में जलती हुई शमों और जर्द बल्बों की हल्की पीली रोशनी माहौल को बेहद मखमली, गर्म और रोमानवी बना रही थी। काशिफ ने आहिस्ता से कदम उठाए और कमरे का भारी लकड़ी का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। चुटकी की आवाज़ के साथ ही इसकी अपनी धड़कनें इस कदर तेज़ हो गईं कि इसे अपने सीने में एक शोर सा महसूस होने लगा। बेड के आइन वस्त में सुर्ख और सुनहरी चमकदार जरी वाले नफीस और उसी सूट में मलबूस जोया घूंघट निकाले बैठ थी। इसके हाथों पर रची गहरी मेहंदी की खुशबू और पैरों में पहनी पायल की हल्की सी झनकार काशिफ के आवाज़ पर सहर तारी कर रही थी। काशिफ धीरे धीरे चलता हुआ बेड के करीब आया और जोया के बिल्कुल बराबर में बैठ गया। इसके बैठते ही बेड के गद्दे में जो हल्की सी जुम्बश हुई, इसने जोया को पूरे वजूद में एक कपकपाहट दौड़ गई। वो अपने नाजुक हाथों की मखरूती उंगलियों को दुपट्टे के जरी वाले कोने में मरोड़ रही थी और इसकी लंबी पलकें हया के बोझ से रखसारों पर लर्ज रही थीं। जोया, काशिफ की भारी, धीमी और खुमार आलूद आवाज़ कमरे के सुकूत को चीरती हुई उभरी। जोया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इसकी सांसों की आमदरफ्त तेज हो गई। इसका सीना फूलों के हार के नीचे तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। काशिफ ने अपने कांपते लेकिन नरम हाथों से जोया के लाल गोटे वाले रेशमी घूंघट को होले से ऊपर उठाया। ज्यों ही घूंघट हटा, काशिफ की निगाहें जोया के निखरे हुए चांद जैसे चेहरे पर जा टिकीं। शमा की धीमी रोशनी में जोया के नरम शदाब और बेदार रुखसार ऐसे चमक रहे थे जैसे शबनम के कतरे से पानी लगा हो, ताज़ा सुर्ख गुलाब हो।
اس کی ستواں ناک میں پہنی ہوئی سونے کی نت اور رخساروں پر بکھری زلفوں کی سیاہ لٹیں کاشف کے دل کی دنیا میں زلزلہ برپا کر رہی تھیں۔ کاشف نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو زویا کی نازک ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ ہولے سے اوپر اٹھایا۔ زویا کی بڑی بڑی خمار آلود آنکھوں نے جب کاشف کی محرمانہ اور بے پناہ محبت سے لبریز آنکھوں میں دیکھا تو اس کا پورا وجود شرم اور حیا سے پانی پانی ہو گیا۔ آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو زویا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ کاشف نے زویا کے گال کے قریب اپنے ہونٹ لے جا کر انتہائی نرم اور دھیمے لہجے میں سرگوشی کی۔ زویا نے حیا سے مسکراتے ہوئے اپنے سرخ ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا اور اپنی پلکیں جھکا لیں۔ کاشف، میں نے زندگی کے جس موڑ پر سب کچھ کھو دیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے میرے لیے اتنا پیارا ہم سفر سنبھال کر رکھا ہے۔ یہ صرف شروعات ہے زویا، میری محبت کا یہ سفر اب قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگا، کاشف نے جذباتی ہو کر کہا۔ کاشف نے آگے بڑھ کر زویا کی کشادہ اور چمکتی ہوئی پیشانی پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ اس ایک پاکیزہ، مہربانہ اور محبت بھرے لمس نے زویا کے اندر کے تمام پرانے زخم، تنہائی، خوف اور درد ایک ہی سیکنڈ میں دھو ڈالے۔ زویا نے اپنے نازک مہندی رچے ہاتھ کاشف کے چوڑے شانوں پر رکھ دیے اور خود کو مکمل طور پر اس کی پناہ میں سونپ دیا۔ کاشف نے آہستہ سے زویا کے سر سے بھاری زری والا دوپٹہ اتارا اور اس کے سیاہ گھنی زلفوں کے جوڑے کو کھول دیا۔ ریشمی سیاہ بال زویا کی گندمی شانوں پر اور کمر پر بکھر گئے، جس سے اس کا سراپا اور بھی دلکش اور پرکشش ہو گیا۔ کاشف نے اس کی زلفوں کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا، اس کے نکھرے ہوئے گالوں کو چوما اور زویا کو اپنی مضبوط، گرم اور محفوظ باہوں میں بینچ لیا۔ اب تم کسی کا وہم نہیں ہوگا زویا، تم میری حقیقت ہو، میری روح ہو، میری بیاہتا بیوی ہو، کاشف نے اس کے کان کی لوح کے پاس جھک کر مدہوش کن آواز میں کہا۔ زویا نے اپنے چہرے کو کاشف کے چوڑے سینے میں چھپا لیا، جہاں کاشف کے دل کی تیز اور باقاعدہ دھڑکنیں اسے ایک انوکھے تحفظ، سکون اور تسکین کا احساس دلا رہی تھیں۔ پھولوں کی مہک، پیلی روشنی کی دھیمی آنچ اور دو پاکیزہ روحوں کا ایک دوسرے میں سمانے کا یہ خوبصورت سفر رات کے آخری پہر تک جاری رہا۔ ماضی کے تمام تلخ سائے اور تنہائی کے خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے تھے اور سچی محبت نے دو دلوں کو ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا تھا جہاں صرف سکون، لمس اور لامتناہی خوشیاں تھیں۔ تو دوستو، یہ تھی کاشف اور زویا کے صبر، سچائی اور بے پناہ محبت کی وہ داستان جس نے ثابت کر دیا کہ فریب کے بادل چاہے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، سچی محبت کی روشنی ان کو چیر کر نکل ہی آتی ہے۔ اگر آپ کو کاشف اور زویا کا یہ رومانٹک اور خوبصورت ملن پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل کھول کر لائک کیجیے، کامنٹس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ ایسی ہی مزید جذبات سے بھری کہانیاں سننے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔